Hello everyone. So today we are starting with the first chapter of class 11 and that is set. So set is nothing but it is a collection of objects of a similar kind, such as the pack of cards, such as the crowd of people, such as players in a cricket team. So all this is nothing but it is a collection of objects of a similar kind. Apart from this, we also talk about organizing our wardrobe. While organizing the wardrobe, we always make sure that each and every cloth is assigned a proper space. Also, while organizing a kitchen, we make sure that each and every utensil or pulses or anything that belong to the kitchen are assigned a proper space. So all this is nothing but again a collection of objects which share a similar property. Also, if we talk about the Harry Potter series, it also share a similar property that all the books belong to the Harry Potter series. So undoubtedly in our real life we are using the concept of set. So let's see that how in mathematics the concept of set is used. We usually talk about the collection of numbers. We talk about the collection of natural numbers, the collection of whole numbers. We talk about the collection of integers, rational numbers, irrational numbers, and real numbers. So all this is nothing but the collection of the numbers are known as sets. So the collection of all the natural number is known as the set of natural number. Collection of all the whole number is known as the set of whole numbers. Collection of all the integers is known as the set of integers. Collection of all the rational numbers is known as the set of rational numbers, so on and so forth. Let's see a few more examples for this. Okay, so here in the chart, the boxes in yellow color belong to the set of are the collection of prime numbers which are less than 100, and all other numbers are the composite numbers which are less than 100. So all these yellow color boxes are a collection of prime numbers, so that again is a part of a set of prime numbers. And all the others numbers are a collection of composite numbers that again become a set of composite numbers. Also here you can see all the yellow colors columns are a collection of all the odd numbers, and the blue colors columns are known as the collection of even numbers. So this is how in mathematics also we are using a collection of particular kind of numbers which again become a set. Okay, so majorly you need to make sure that while studying the concept of set, all the numbers or all the objects belonging to a particular set should share a similar or same property. Okay, so let's study. Okay, before starting the concept, let's study a few symbols about sets. So the set of natural numbers, you will denote it as by the symbol n. Whole numbers you will denote by w. Set of integers will be denoted by z. And set of rational numbers will be denoted by q. Set of irrational number will be denoted by p. Set of real numbers will be denoted by r. Set of positive integers will be denoted by z plus. Set of positive rational numbers will be denoted by q plus. Set of positive real numbers will be denoted by r plus. Okay, so all these are a collection of numbers which share a similar property. So all of them become a part of a set. Okay, let's see a few more examples of set. Firstly, we have the rivers of India. यानी कि जितनी भी rivers जो कि इंडिया में belong कर रही है वो सारा हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिवर नाइल की, तो वो इंडिया की रिवर बिल्कुल भी नहीं है. तो क्या वो इंडिया के रिवर्स का सेट में बिलोंग करेगा? नो, इट वोंट बिलोंग. ओके, नेक्स्ट the vowels in English alphabet, namely A, E, I, O, U. तो ये सारे वो vowels है जो कि English alphabet में belong करते हैं. तो again that become a set because they share a similar property, right? Next, various kinds of triangles. Again, that is also a set. Next, we have collection of first 5 prime numbers is a set containing 2, 3, 5, 7, 11. So all this again has a similar property that all the numbers are the first 5 prime natural numbers. Next, we have the set of odd natural numbers less than 10. Again, they have a well-defined property that again become a set. Okay, next is prime factors of 210. Again, that's a property that again become a set. Next is the collection of equations. The solution of the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So there are two solutions of this particular equation, that is 2 and 3. So this also belong to the set of the solution of equation, this one. Clear? Alright. So these are a few examples which I have talked about for set. Moving on. So what do we actually mean by the concept of set? So set is a
collection of well defined objects which are distinct from each other. तो जब भी हम सेट पढ़ रहे हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स जो कि सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, ऑल ऑफ देम शुड हैव अ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी. ओके, दिस मीन्स कि उनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, एक सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए सभी एलिमेंट्स की जो कि एक सेट में बिलोंग करेंगे. एंड वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, ये पहली चीज. और दूसरी चीज जो आप सभी को ध्यान रखनी है, दैट इज सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए. इसका मतलब क्या है, अगर जनवरी एक बार आ गया तो आप दोबारा से जनवरी के महीने को कंसिडर नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर सेट ऑफ वॉवल्स में अगर ए आपने एक बार लिख लिया तो आप ए को दोबारा से नहीं लिख सकते. क्लियर है ये बात? तो कोई भी नंबर अगर अगर आप एक बार कंसिडर कर चुके हो तो आप उसको दोबारा नहीं लेकर आ सकते. फाइन. ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ 5 renowned mathematicians of the world, तो क्या ये सेट होगा? नो, इट इज़ नॉट अ सेट. वाई इज इट नॉट अ सेट? बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ भी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं दी है उस पर्टिकुलर थिंग को. यानी कि जो रिनाउंड मैथमेटिशियन है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है. तो ऑल ऑफ देम डू नॉट शेयर अ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी, सो देयरफॉर इट वोंट बी अ सेट. तो एक बार कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेंगे अभी हम थोड़ी देर में सेट के क्या होते हैं. उससे पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है. पहला पॉइंट क्या है, दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द सेट आर सिनोनिमस टर्म्स. यानी कि अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ वॉवल्स की, यानी कि ए आई ओ यू, ये सारे एलिमेंट्स भी कह सकते हो आप इनको, इनको आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो और इनको आप एक सेट के मेंबर्स भी कह सकते हो. ठीक है. दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना, दैट इज सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड, या फिर कोई भी आप अल्फाबेट से, आप कैपिटल अल्फाबेट से आप सेट को डिनोट कर सकते हो. ओके. थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज सेट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स होते हैं एक सेट के, आपको हमेशा उनको एक स्मॉल लेटर से ही डिनोट करना है. तो सब ध्यान रखेंगे कि हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट. ओके. ओके, आगे कुछ और चीज आपको नोट ध्यान रखनी है, दैट इज if A is an element of A, we say that A belongs to A. इसका मतलब क्या है कि अगर A एक एलिमेंट है और वो अगर सेट A में बिलोंग करता है तो हम उसको कैसे बोलते हैं, that A belongs to A. Okay? The Greek symbol epsilon is used to denote the phrase belongs to. और हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं किसी भी चीज को दिखाने के लिए, वो पर्टिकुलर एलिमेंट अगर एक पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करता है तो. और उसको हम कैसे लिखते हैं, वी राइट इट लाइक A belongs to A. ठीक है. क्लियर. नाउ इफ आई टेक अ सेट, मैंने ये सेट लिया A और इसको मैं कंसिडर करती हूँ द सेट ऑफ वॉवल्स, तो क्या होते हैं, A E I O एंड U. ओके. अब यहाँ पर अगर मैं एक एलिमेंट लूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टुक अ एलिमेंट A, क्या A हमारा इसके अंदर लाई कर रहा है? क्या A सेट A में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, विल राइट A एप्सिलॉन A. क्लियर. that means A belongs to A. For example, अगर मैं एक और एलिमेंट लूँ B, क्या मैं B को A के अंदर देख सकती हूँ? सेट A में दिख रहा है मुझे B? नहीं दिख रहा. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन हम लिखेंगे और साथ में एक स्लैश ड्रॉ कर देंगे, विच इज रेड एज B does not belong to A. क्लियर है सबको? ओके. और कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे. इन द सेट P ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, हम 30 के प्राइम फैक्टर्स कंसिडर करेंगे. ओके. क्या 3 एक प्राइम फैक्टर है 30 का? बिल्कुल है. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 3 बिलोंग्स टू P, यानी कि 3 एप्सिलॉन P. ऑल्सो क्या 15 30 का प्राइम फैक्टर है? नो, इट इज नॉट अ प्राइम फैक्टर. 15 30 का फैक्टर तो है बट वो प्राइम फैक्टर नहीं है. तो आप उसको कैसे लिखोगे, 15 does not belongs to P. Okay, I hope so सबको क्लियर है कि एप्सिलॉन क्या होता है. Okay, moving forward. All right, next we have that whenever we represent a set, तो set को represent करते समय हम दो methods का use करते हैं. First method is the roster or the tabular form and second is the set builder form. ठीक है, एक एक करके दोनों methods को study करते हैं. ओके. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है. ओके. सो रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज अ टैबुलर फॉर्म. सो इन रोस्टर फॉर्म
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, यानी कि सबसे पहले आपको सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना है. द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, फिर कॉमा से सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करना है. एंड आर इनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, यानी कि जो भी आप सेट को डिफाइन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करोगे, उसके बाद आप उनको कॉमा से सेपरेट करोगे, एंड देन आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करोगे. क्लियर है ये बात? अभी जो ब्रैकेट्स आ गए तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से तरह के ब्रैकेट्स होते हैं एक्चुअली. तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ये वाला ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है. सेकेंड वी हैव दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट. ओके, इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज पेरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट. ठीक है, दिस इज नोन एज पेरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स. एंड थर्ड टाइप ऑफ ब्रैकेट इज दिस इज नोन एज अ बॉक्स ब्रैकेट. दिस इज अ बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो ये तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं. आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी हम रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट पढ़ेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस का ही यूज करेंगे. ठीक है, तो चलो और समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट को कैसे लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो सबसे पहले हमें सारे के सारे वॉवल्स को लिखना है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में बिलोंग करते हैं. ओके, तो कौन कौन से वॉवल्स है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में लाया करते हैं? दैट इज ए, ई, आई, ओ एंड यू. तो सबसे पहले हमने सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करा, उसके बाद हम इनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, एंड देन हम इनको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेंगे. तो ये हो गए सारे, ये हो गए, दिस विल बी योर रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट. तो जैसे आप देख सकते हो हमने सारे एलिमेंट्स को कैपिटल स्मॉल लेटर से लिखा है, और हम इस सेट को कैपिटल ए से डिनोट कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7. तो हमें सारे के सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो कि 7 से छोटे होते हैं. ओके, तो वो कौन कौन से हैं? सिर्फ इवन 2, 4 एंड 6. ठीक है, कॉमा से सेपरेट एंड कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज, और हमने इसको बी से डिनोट कर दिया. ओके, नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42. यानी कि हमें सारे के सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि 42 को डिवाइड करते हैं. मेक श्योर ओनली नेचुरल नंबर्स. ओके, तो वो कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42. कॉमा से सेपरेट एंड कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज, और इसको आप कैपिटल सी से डिनोट कर दो. ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप सेट के एलिमेंट्स लिख रहे हो तो कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता. जब भी हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता. यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आ सकता है. यानी कि अगर मैं पहले 42 लिखूं, फिर मैं 7 लिख दूं, फिर मैं 14 लिख दूं, फिर मैं 1 लिख दूं, फिर मैं 21 लिख दूं, फिर 6 लिख दूं, फिर मैं 3 लिख दूं. ठीक है, आई होप कोई छोटा तो नहीं. ठीक है, तो इधर बिल्कुल भी इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल. यानी कि आप रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट का जो ऑर्डर है वो आगे पीछे कर सकते हो. एक पर्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है. क्लियर? Alright, next we have set of odd numbers. तो यहाँ पर well defined property क्या है? That is all these are odd numbers. तो क्या क्या होगा? 1, 3, 5, 7 ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो हम इसको डॉट डॉट लिख देंगे और कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो. ओके, नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी. अब हमें मिसिसिपी के सारे लेटर्स को लिखना है, सेट ऑफ लेटर्स लेना है. तो वो क्या आएगा? M, I, S एंड P. तो सिर्फ ये 4 लेटर्स ही लिखने हैं आपको. इसके अलावा जैसे S 4 बार आ रहा है, P 2 बार आ रहा है, I 4 बार आ रहा है, तो वो चीज़ आपको मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखने, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सेट में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं. कोई भी आप रिपीटेड एलिमेंट को सेट में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो. क्लियर? अब एक नोट पढ़ लेंगे इसी के बेसिस पर. While writing the set in roster form, an element is not generally repeated. तो किसी भी एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते हो. दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट. फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल इज SCHOL or HOLCS. Here the order of listing the elements are has no relevance. Okay,
तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको रोस्टर फॉर्म के कंसिडर करे, इन सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी थी। इन ये सारे के सारे हमारे वेल डिफाइंड सेट थे। तो जो भी हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है वो सभी हम सेट के उन सभी को हम सेट कहते हैं। ओके, next we have second method to denote, to represent a set, we have a set builder form. Okay, so in this method we write down a property or a rule which gives all the elements of the set. तो जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम हमेशा उस पर्टिकुलर सेट की कोई एक प्रॉपर्टी या फिर कोई रूल लिखते हैं जो सेट को डिफाइन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सेट को ए से डिनोट करते हैं, सो ए इज इक्वल टू, अगेन कर्ली ब्रैकेट्स तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलिमेंट जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं ना, हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल माई एलिमेंट इज एक्स, सो एक्स कोलन, कोलन का मतलब होता है सच दैट, और इधर हम साथ में लिख देंगे जो भी एक्स की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और यहां पर हम अंदर लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। सो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स एक्स कोलन प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम इस तरह से किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे हम, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स एक्स इज सच दैट। अब एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, दैट एक्स इज अ vowel in English, X is a vowel in English alphabet. Okay, तो ये हो गया X एलिमेंट सच दैट, X की फिर आ गई प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X कोलन, सो X की प्रॉपर्टी क्या है, दैट X इज अ नेचुरल नंबर, X is a natural number which divides 42. Clear? All right, next we have the set of odd natural numbers. Set of odd natural number, how will we write it? So it will be D X such that X is an odd natural number, X is an odd natural number, ठीक है। तो ये था सच दैट के बाद यानी कि कोलन के बाद हमने हमेशा X की प्रॉपर्टी लिखी है। क्लियर है सबको? ओके, मूविंग ऑन, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम इन एग्जांपल्स को भी ना सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 7। तो यहाँ पर एक तरीका तो हमने पीछे कर लिया, दैट इज अब हम इसको लिखेंगे X सच दैट X is even positive integers which is less than 7। अब यहाँ पर मैं आपको एक alternate way दिखा रही हूँ जो हम mathematically set builder form में इस चीज़ को express कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक set लूँगी A is equal to x कोलन। अब मैं यहाँ पर x की प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, x एक क्या है, x is an even positive integer, x is an even positive integer। तो हम वो even positive integers को और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे, इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी नंबर लिखना है तो वो क्या ध्यान देना है हमें, यहाँ पर जैसे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का हम सेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2, 4 एंड 6, सिर्फ ये 3 नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लाइक दिस इज ट्वाइस ऑफ 1, दिस इज ट्वाइस ऑफ 2 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ 3। तो यहाँ पर n की जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। क्लियर? तो एक और चीज, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, सॉरी n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना है हमें, ठीक है। तो हम उसको z प्लस से डिनोट करेंगे, एंड जो n की वैल्यू है वो किसके बीच में लाया कर रही है, 1 से लेकर 6 के बीच में। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। x अब एक नेचुरल नंबर है बिटवीन 3 एंड 10, ओके। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू x, चलो अभी इधर ना वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, y इज सच दैट y इज इक्वल टू, y क्या है, y, अच्छा यहाँ पर आप सीधा ही लिख सकते हो कि y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड y
लाइज बिटवीन 3 and 10, यानी कि 3 और 10 के बीच में, एक्सक्लूडिंग बोथ, क्योंकि वो y 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, दोनों के इक्वल नहीं। ओके, नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर अगेन जो हमारा एक एलिमेंट है z, वो नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग कर रहा है, विच इज लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5। चलो आओ इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या होगा, c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x कोलन, सॉरी हमने z लिया ना, तो z कोलन z belongs to the set of natural numbers and z is less than or equal to 5. Okay, is this clear? Set builder form and roster form clear हो गया है सभी को? Okay, so अब हम कुछ questions करेंगे जिससे आपको concept एकदम clear हो जाएगा. Okay, and here I am doing each and every example and each and every question relating to this particular concept. Okay, so first of all we will do the first example, that is write the solution of the set of equation. हमें एक इक्वेशन दी हुई है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0. अब हमें इसके सारे के सारे सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इसको सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, दिस विल बी x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ गई है, -2 एंड 1. ठीक है, अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या होगा, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज एलिमेंट्स लिखोगे आप -2, 1. अच्छा, अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आप इसको अपनी मर्जी से 1, -2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, नेक्स्ट राइट द सेट. अब ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ओके, x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस दैन 40. ठीक है, तो हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं x के जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं और उनका स्क्वायर 40 से कम आना चाहिए. ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कौन कौन से नंबर्स होंगे. सबसे पहले लेट्स से 1 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, 3 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, 4 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, 5 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 6 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो वो 40 से बड़ा हो जाएगा. तो सिर्फ आप ये 6 एलिमेंट्स को ही कंसिडर करेंगे. क्लियर है? ओके, रोस्टर फॉर्म क्लियर है सबको? ओके, आगे राइट द सेट 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आपको सबसे पहले ना इसका पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है. ओके, तो देखते हैं. सबसे पहले ये जो 1 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? दूसरा, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ पर इन सभी नंबर्स में सभी नंबर्स का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये सारे ही नंबर्स जो है ना, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए. ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो जाएगा दैट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, इसके अलावा इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू x सच दैट, अब यहाँ पर आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, जो हमारी पार है हर बार सेम है, बस हमारा जो बेस है वो चेंज हो रहा है. ओके, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n कहाँ से n की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1. सो n इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, बट n की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई डॉट डॉट दिया हुआ है, हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू दी ही नहीं गई. ठीक है, clear है set builder form? Okay, moving on to example number 4. Next is the set 1 over 2, 2 over 3, 3 over 4, 4 over 5, 5 over 6 and 6 over 7 in set builder form. Again आपको property को observe करना पड़ेगा इधर. Okay, property क्या है, अगर 1n है तो जो उसका डिनोमिनेटर है वो n plus 1 हो जाता है, और यही वाला डिनोमिनेटर ऊपर फिर जाकर न्यूमरेटर बन जाता है, और अगेन अगर फिर ये n होता है तो अगेन डिनोमिनेटर में उसका n+1 हो जाता है. क्लियर, अगर जैसे ये n+1 आया तो नीचे n+1 हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर का ही हर बार +1 होता जा रहा है. तो यहाँ पर ये क्या प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेट b इज
कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू, कोई भी एक ले लो आप, ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी एक कंसिडर कर लो, यानी कि अगर न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर n प्लस 1 है, ठीक है, न्यूमरेटर अगर n है तो डिनोमिनेटर n प्लस 1 है, ओके और ये जो सारे n है ना, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, all of them belong to the set of natural number. इंटीजर्स मत लिखना, बिकॉज इंटीजर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी मत लिखना, ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिखना है आपको, ओके। नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ पर हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि n की जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो n की मिनिमम वैल्यू क्लियरली हमें दिख रहा है, n की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है, ओके। और अगर ये n है तो ऑब्वियसली दिस इज n प्लस 1, तो इस हिसाब से n की वैल्यू मैक्सिमम कौन सी हो जाएगी, 6, ठीक है। सो कॉमा करके क्या लिखोगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। n आपका 1 से लेकर 6 के बीच में लाया करेगा, इंक्लूसिव ऑफ 1 and 6 बोथ, ओके। आई होप रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया होगा सभी को। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, मैच द फॉलोइंग, ओके। सो फर्स्ट इट इज x is a positive integer and is a divisor of 18. 18 के इनमें से कौन कौन से 18 के डिवाइजर है और वो पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज राइट। सो पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 18, ओके। नेक्स्ट, x is an integer and x square minus 9 is equal to 0. तो पहले इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव x square minus 9 is equal to 0, which means x square is equal to 9. This means x is equal to plus minus 3, which means you have fourth option, okay, right? Next we have x is an integer and x plus 1 is equal to 1. तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x plus 1 is equal to 1 का मतलब क्या हो गया, x is equal to 0, तो इसमें से कौन सा है, दैट इज सेकेंड पार्ट, ओके। लास्ट वन वेरी इजी, x is a letter of the word principal, obviously that will be first part, okay. आई होप क्लियर है सबको, ओके फाइन। तो चलो अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, यानी कि आपको ये भी बताना है कि वो सेट है या नहीं, और साथ में ये भी बताना है कि वो सेट है तो क्यों है, और अगर वो सेट नहीं है तो फिर वो सेट क्यों नहीं है, ओके। फर्स्ट वी हैव द कलेक्शन ऑफ all the month of the year beginning with the letter J. तो जितने भी महीने हैं जो कि J से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक जनवरी, जून, जुलाई, तो ये सभी की एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J. So this is a well defined collection of objects, therefore it is a set. Second we have collection of 10 most talented writers of India. तो यहाँ पर जो ये 10 most talented writers of India पूछा गया है ना, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट्स का, therefore it is not a set, okay. Next we have टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन, अब जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकते हैं, किसी के लिए 10 कोई और होगा, किसी के लिए 10 कोई और होगा, तो अगेन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इस वजह से ये भी एक सेट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उन सभी का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड है, देयरफॉर इट विल बी अ सेट, okay. Next we have collection of all natural numbers less than 100. 100 से सारे natural, 100 से छोटे सारे natural numbers देखने हमें, तो again it is a well defined collection, therefore it is a set, okay. Next we have collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी novels लिखे हैं, all of them are a well defined collection of objects, therefore it will be a set. Next we have collection of even integers. Even integers भी एक well defined collection है, therefore it will be a set. Next we have collection of questions in this chapter. सेट आप पढ़ रहे हो, अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे वेल डिफाइंड सेट है, देयरफॉर इट विल बी अ सेट, ओके। लास्ट एग्जांपल वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में
डेंजरस एनिमल्स का एक जो कलेक्शन हम ले रहे हैं। अब अगेन वही बात आ गई कि जो डेंजरस एनिमल है वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी ही नहीं है इन चीज़ों की, तो ये सेट नहीं है। क्लियर? तो अगर कोई भी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट हो तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि उनकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो वी नीड टू इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। तो हमें ये एप्रोप्रिएट सिंबल लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है, यानी कि हमें बताना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उस सेट में या फिर बिलोंग नहीं कर रहा। आपको मैंने बताया हुआ है एप्सिलॉन का मतलब होता है दैट द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट, एंड इसका मतलब होता है दैट द एलिमेंट, इसका मतलब होता है दैट द एलिमेंट डज नॉट belong to the set। okay, fine, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 डैश ए। क्या 5 ऊपर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग टू ए। नेक्स्ट वी हैव 8 डैश ए। सो क्या हमें 8 दिख रहा है? 8 नहीं दिख रहा, सो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, नेक्स्ट वी हैव, तो थोड़ा ठीक से बना देती हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ओके, नेक्स्ट वी हैव 0 डैश ए। क्या हमें 0 दिख रहा है? नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट 4 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 2 दिख रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। लास्ट वी हैव 10। 10 हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हम क्या लिखेंगे? विल राइट 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, फाइन। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन। इट सेज दैट राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया ना, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो करते हैं। So a is equal to x colon, यानी कि x such that x is an integer। प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक इंटीजर है और वो एक ऐसा नंबर है जो कि 3 -3 और 7 के बीच में लाया कर रहा है, इंक्लूसिव ऑफ -3। ठीक है, तो हम सारे इंटीजर्स लिखेंगे जो इस सेट को बिलोंग करते हैं। वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो -3, देन -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 नहीं लेना क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं कर रहे हम। ओके, नेक्स्ट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर का सेट लिखना है हमें। ओके, जिसको हम b से डिनोट कर रहे हैं। सो b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 एंड 5। बस 6 से छोटे लिखेंगे तो सिर्फ 5 तक लिखोगे आप। ओके, नेक्स्ट वी हैव x इज अ 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। ठीक है, तो हमें ऐसे 2-digit नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका डिजिट्स का जो सम है ना वो 8 होगा। ओके, ओके, फर्स्ट वी हैव 17, देन वी हैव 26, then we have 35, next we have 44, then next we have 53, then next we have 62, then next we have 71 and last we will have 80। कई बच्चे 80 लिखना भूल जाते हैं, 80 भी तो आएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक 2-digit नेचुरल नंबर है विच जिनका सम ऑफ डिजिट्स 8 है। क्लियर? क्लियर हो गया ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, रोस्टर फॉर्म में ही अभी रोस्टर फॉर्म के ही क्वेश्चंस है। ओके, now x is a prime number which is a divisor of 60। यानी कि हमें 60 के सारे प्राइम डिवाइजर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 60 के सारे प्राइम डिवाइजर्स कौन से होते हैं? 2, 3 एंड 5। बस। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? इट विल बी e इज इक्वल टू, सबसे पहले t, r, i, G, O, N, O दोबारा नहीं आएगा, M, E, T दोबारा नहीं आएगा, R दोबारा नहीं आएगा एंड लास्टली वी हैव Y। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब हमें इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट्स B, E, T, R। करेक्ट, तो ये 4 नंबर्स आएंगे हमारे, 4 अल्फाबेट्स आएंगे हमारे इसके सेट में। ओके, टी 2 बार आ रहा है, एक बार लिखना है। ई 2 बार आ रहा है, खाली एक बार लिखना है, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दोज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। हियर वी हैव सेट ऑफ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें यहाँ पर ना इसकी प्रॉपर्टी को पहले समझना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 3 दिया हुआ है, ठीक है। हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? हम 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1। 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2। फिर 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3। फिर 12 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 4। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है? ऑल दीज आर अ मल्टीपल ऑफ 3 टिल 12, ठीक है। तो एक तो आप लिख सकते हो दैट x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 टिल 12। ओके, और दूसरा जो हम ये प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख रहे हैं वो क्या है? यहाँ पर हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x कोलन x इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है? 3 जो है वो हमारा हर बार सेम रहेगा, बस ये वाला जो साथ वाला एलिमेंट है वो बदल रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू 3n। और जो n है वो किसको बिलोंग करता है? 1 2 3 4, यानी कि n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है, और जो n की मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1 एंड n की मैक्सिमम वैल्यू इज 4। ओके, 1 से लेकर 4। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे अब हम, दैट इज 2 4 8 16 32। प्रॉपर्टी आप लोग एक बार खुद भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर आप वीडियो आगे देख लो। ओके, नेक्स्ट इज 2 को हम ट्वाइस ऑफ 1 लिखेंगे, 4 को हम ट्वाइस ऑफ 2 लिख सकते हैं, 8 को हम लिखेंगे 8 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। सो बेसिकली ये हो गया आपका 2 टू द पावर 1, ये हो गया आपका 2 टू द पावर 3, ये हो गया, सॉरी, ये 2 टू द पावर 2, ये हो गया 2 टू द पावर 3। फिर 16 को आप लिखोगे 2 टू द पावर 4, एंड लास्ट 32 को आप लिखोगे 2 टू द पावर 5, ठीक है। पैटर्न क्या है अब यहाँ पर? b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट y कोलन y, मतलब y सच दैट y इज इक्वल टू 2 हमारा हर बार सेम है, सिर्फ पावर चेंज हो रही है, यानी कि 2 टू द पावर n, एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड जो n की मिनिमम वैल्यू है, n की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1 और मैक्सिमम वैल्यू है 5। तो n 1 से लेकर 5 के बीच में है, इंक्लूसिव ऑफ बोथ। ओके, नेक्स्ट 5 25 125 625। सो 5 विल बी, पैटर्न ऑब्जर्व करो एक बार, आप वीडियो पॉज कर खुद से पैटर्न ऑब्जर्व करो, नहीं समझ आता देन प्ले द वीडियो। ओके, 5 विल बी 5 टू द पावर ऑफ 1, 25 इज 5 टू द पावर ऑफ 2, 125 है 5 का क्यूब, एंड 625 है 5 टू द पावर ऑफ 4। तो अब हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, दिस विल बी c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट z such that z is equal to 5 to the power of n, and n belong to the set of natural numbers, and n की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1 और मैक्सिमम वैल्यू है 4। क्लियर? क्लियर है? तीनों की सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गई है सबको? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव 2 4 6। 2 4 6 में आपको क्या प्रॉपर्टी लग रही है? ऑल ऑफ देम आर इवन नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? z इज इक्वल टू x कोलन x इज अ, सॉरी, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, इसके अलावा आप और कैसे लिख सकते हो z को? तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी देखो ना, प्रॉपर्टी क्या है? 2 हो गया आपका 2 इंटू 1 4 है, 2 इंटू 2 6 है, 2 इंटू 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? x कोलन x इज इक्वल टू 2n, एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और n की जो मिनिमम वैल्यू है ना, n की मिनिमम वैल्यू है वो है 1, और मैक्सिमम वैल्यू कोई है ही नहीं यहाँ पर, हमें क्योंकि डॉट डॉट दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1 4 9 100, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? 1 विल बी 1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 इज 2 का स्क्वायर, 9 इज 3 का स्क्वायर, और लास्ट 100 इज 10 का स्क्वायर। ये जो 1 लिखा हुआ है दैट इज 1 का स्क्वायर, 4 विल बी 2 का स्क्वायर, 9 इज 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्टली वी हैव 100 विच इज 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू y सच दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा बेस चेंज हो रहा है, पार सेम है, पार हमेशा 2 है, तो इट विल बी n स्क्वायर।
और n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पहले 1 2 3 100, तो यानी कि n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है एंड n की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, n की मिनिमम वैल्यू है 1 और n की मैक्सिमम वैल्यू है 100। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे हम, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10। क्लियर है? सो सेट बिल्डर फॉर्म भी क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, हमें इन सारे सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। फर्स्टली वी हैव x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखेंगे, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स कैसे लिखेंगे हम, 1 3 5 7, और हम नहीं इतने सारे, देखो इनफाइनाइट ऑड नेचुरल नंबर हम सारे तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम डॉट डॉट लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट x is an integer and x is greater than minus half but less than 9/2। ठीक है, सो माइनस हाफ का मतलब क्या हो गया, यानी कि x की जो वैल्यू है ना वो -0.5 से बड़ी होनी चाहिए बट 4.5 से छोटी होनी चाहिए। तो हमें सारे इंटीजर्स लिखने हैं जो कि -0.5 से बड़े हो और 4.5 से छोटे हो। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी b इज इक्वल टू पहला 0 1 2 and 3। okay, next we have x is an integer and x square is less than or equal to 4। यानी कि हमें वो सारे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर लिखा हो तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आप लोग दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे -2। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं -2। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो वो 4 के इक्वल हो गया। -1 का स्क्वायर है 1, तो वो 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर है 0, तो वो अगेन 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 4 से छोटा है एंड 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है। ठीक है, इन पांचों एलिमेंट्स के अलावा आप कोई भी और एलिमेंट इसमें नहीं डाल सकते। क्लियर? ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, d इज इक्वल टू x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ओके, इसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करो, वो क्या होंगे, इट विल बी L O Y A, बस L दोबारा नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं एक सेट के। ओके, नेक्स्ट E सेट इज x इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, सो सबसे पहले वी हैव फेब्रुअरी, April, then we have June, then we have September, okay, June, September, okay, and then we have November। okay, fine। नेक्स्ट, x is a consonant in the English alphabet which precedes k, यानी कि हमें k से सारे k से पहले जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट्स आते हैं हमें वो लिखने हैं। ठीक है, सो इट विल बी f इज इक्वल टू, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स है जो आते हैं, b c d f g h एंड j। तो ये सारे वो कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट की जो कि k से पहले आते हैं। ओके, ऑलराइट, so last question for today's class, and that is match the following। quite easy। okay, first we have x is a prime number and is a divisor of 6। यानी कि 6 के कौन से प्राइम डिवाइजर्स हैं इधर। ओके, प्राइम डिवाइजर्स देखने हमें सिर्फ 6 के प्राइम डिवाइजर। पहला वाला तो डिवाइजर है बट प्राइम नहीं है सारे नंबर्स। ओके, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड 10 से छोटे सारे ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, ऑड नेचुरल, दैट इज पार्ट 4। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। कौन से ऐसे नंबर हैं जो, और कौन ऐसे नेचुरल नंबर है जो कि 6 के डिवाइजर है, दैट इज ऑब्वियसली पार्ट 1। ओके, लास्ट वेरी इजी, लेटर x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, कौन सा है पार्ट, वेरी इजी, थर्ड पार्ट। ओके, फाइन, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सेट का। सेट क्या होता है, सेट को हम रिप्रेजेंट करने के कौन से दो तरीके यूज करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्ड फॉर्म, और उस पर बेस सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए कवर। अब हमने सारे क्वेश्चन भी कर लिए कवर, अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
Okay, thank you so much for watching.